नमस्कार दोस्तों 18th एंड 19th हम मना रहे हैं इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो डे तो है 18th को, लेकिन पूरा वीक इस बार हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार इंटरनेशनली हम लोगों ने जो थीम रखा है वो है पावर ऑफ म्यूजियम। और ऐसे में ही मुझे 2 जगह से इनवाइट आया और उन लोगों ने मुझे कहा कि मैं इस बारे में प्रेजेंटेशंस दूं, बातें करूं। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है दोस्तों कि 24 इयर्स इस इंडस्ट्री को देने के बाद अब उस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि लोग बातें करने के लिए बुलाने लगे हैं और डिस्कशंस पे हमारी अच्छी वार्तालाप होती है, हमारी क्वेश्चनिंग होती है। और जो पहला मुझे मौका मिला वो मिला आईकॉम इंडिया के साथ। मैं बता नहीं सकती मैं कितना अपने आप को खुशनसीब मान रही हूँ इस समय, क्योंकि आईकॉम इंडिया हमारे कंजर्वेशन म्यूजियोलॉजी इस इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट ऑफिस माना जाता है। इसका जो हेड ऑफिस है वो फ्रांस में है और इन्होंने हर कंट्री में अपना एक ऑफिस खोला हुआ है। तो आईकॉम इंडिया की तरफ से मुझे बोला गया कि आप पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग के ऊपर बोले। खुशी होती है देख के कि लोगों तक मेरी कहानियों की जो जर्नी है वो पहुंच रही है। लोग मेरी कहानियां सुन रहे हैं, पहले सुन रहे हैं और उसके बाद डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमें ममता जी को बुलाना है इस प्रोग्राम के लिए। तो मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी आईकॉम इंडिया का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम था, ये वेबिनार था, तो आपको मैं इसकी क्लिपिंग इसी के साथ आगे अटैच करके दिखा रही हूँ। तो आप देखिए और एंजॉय करिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नमस्कार। Today, our discussion topic will be the power of museums through storytelling. Are often seen as a places associated with the presentation of also places where curiosity is invoked and where wondrous things can be discovered. Storytelling has the power to conjure up the magic of museums. Today, we'll explore the issue of storytelling related to museums as a means of cultural heritage, valorization and audience engagement. Now, with Ms. Abantika Parasar, District Museum Officer, Assam, to please start this event with a welcome speech. Ma'am. Yeah, thank you so much. And good morning. On this International Museum Day, I welcome you all. And let's start the day with the hope of a connected and more warmful, more beautiful museum world and connected fraternity throughout the world. So, as the theme of this year, the power of museum, I truly feel that museum has the power to change the world, to make humankind unique in terms of history, heritage, and our culture. Once upon there was a time when museums were regarded as wonder houses, where people, if they collect objects as souvenirs and they gather them and they stuck them inside the building, four-walled building, and neighbors, their known people. International and national fellowships. She is the head of Department of Museology and President ICOM India, and our very own Professor Ambika Patel. Ma'am, we request you to grace us with your wiseful words. Ma'am. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay, a wonderful warm morning to each one of you and namaskar. और सभी को मेरी तरफ से wonderful International Museum Day 2022. I am privileged to have two wonderful speakers with us today, and when we were discussing, me and Bandika was discussing, we have been talking about storytelling since long, and we wanted to do it in a different, in a session or different occasion. But when we were thinking of power of the museum, we thought, why can't we think of smaller things in a bigger way? Where, talking about people when look at storytelling in a very, localized form, possibly each region,
each community, each locality have its own flavor, its own story, its own tales, its own songs, its own traditions and practices. So coming to that point, and then we also have one more speaker with us who is actually doing research with me, Shruti Gautam, and Mamta Bhatt is already a well-known storyteller. And Shruti is researching on the nuances of storytelling and research on how mythological stories could be bring in, and both of them will be speaking down the line. As my part is concerned, so me and Avantika thought when we were negotiating with this, or maybe brainstorming with this idea of storytelling, we thought, yes, let us take the small tool to make big gains possible and also big events possible. And we are thinking of Atmanirbhar Bharat, self-sufficiency, in terms of even in the remote areas of the local small museums, they can get a storyteller to speak. Storytelling is equally important as an online, professional talk by a very subject expert. Also a digital, artificial intelligence session, which is happening for museums and their growth. And also for science museums, talking about facts and satellite launching and things related to it, connecting with the, when we talk of STEM, science, engineering, technology, and mathematics, equally cultural and heritage play the same role. The museums are an important means of cultural heritage, enrichment of cultures, and development of mutual understanding, cooperation, and peace among peoples. Organized by the उसको पहुंचाती थी, क्योंकि IGNCA आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी देता है एक्सपर्ट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, और वर्ल्ड वाइड आप हर कंजर्वेटर से, हर म्यूजियोलॉजिस्ट से किसी न किसी कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप के थ्रू जुड़ जाते हैं। और उस वक्त आप क्या ये अगर आप में स्टोरी टेलिंग का एक हुनर है तो आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो अपनी बातों को, अपने प्रोफेशन को, अपने केसेस को। और मैंने वो चीज़ किया, कोई भी डाउट्स नहीं रखे, मुझे जो आता था मैंने वो आगे तक पहुंचाया, और जो मुझे नहीं आता था वो मैंने एक्सपर्ट से हमेशा क्लियर किया। उसी Project Associate and Art Conservator, IGNCA Delhi. She is a qualified art conservator professional working in the field for 24 years with museums and private clients. She has also done specialization in stone conservation for National Museum, Liverpool. She has various publications on art and storytelling and its impact. Ma'am, I request you to carry forward this event. थैंक यू सो मच। अपने इतने साल दे चुकी हूँ तो क्यों नहीं मैं स्टोरी टेलिंग को म्यूजियम के साथ ऐड करके एक बार आगे बढ़ना शुरू करूं। सच मानिए मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि म्यूजियम के अंदर भी स्टोरी टेलिंग हो सकती थी। शुरू में मुझे बहुत घबराहट हुई, डर भी लगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके मैंने स्कॉलर गाइड में बन गई नेशनल म्यूजियम में, और वहां मैंने अपनी जर्नी शुरू की, और मैंने अपने सारे जो मेरे ड्रीम्स थे वहां फुलफिल किए। मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिलते थे, इंडियन क्लाइंट्स जो जानना चाहते थे म्यूजियम के बारे में, म्यूजियम के स्कल्पचर्स के बारे में, क्या होता है म्यूजियम। क्योंकि आप अगर म्यूजियम के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते हैं जिसमें कि आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिएगा, आप इस चीज को ऑब्जर्व करिएगा कि म्यूजियम विजिटर जो है कुछ समय के बाद बोर हो जाता है। वो थोड़ी देर तो बहुत एक्साइटमेंट में म्यूजियम घूमता है, लेकिन उसके बाद वो म्यूजियम से बाहर चला जाता है। वो फिर या तो कहीं बैठने की जगह ढूंढने लगता है या फिर कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट ढूंढने लगता है। तो ये हमारी जिम्मेवारी होती है एज अ म्यूजियम प्रोफेशनल कि हमको म्यूजियम को इतना इंटरेस्टिंग बनाना है। और जब मैंने फिर इस प्रोफेशन में आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरे साथ लोग जुड़ते चले गए, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे लगा कि हाँ मैं बहुत सही काम कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें रिसर्च करनी शुरू कर दी। अनफॉर्चुनेटली मेरी पीएचडी इस टॉपिक पे पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैंने रिसर्च को छोड़ा नहीं, मैं रिसर्च को अभी भी कर रही हूँ। और मैंने ये देखा कि यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए जो है इसमें बहुत आगे निकल चुके हैं। अब उनकी जो स्टेज है वो डिजिटाइजेशन तक आ चुकी है, आईए तक आ चुकी है, वो बहुत आगे निकल गए। लेकिन हम इंडियंस जिनको इतना अच्छा हुनर मिला है बात करने का, हमारी भाषा इतनी सुंदर है, आज हम भारतीय लोग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुके हैं अपने बोलने के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने आर्ट और कल्चर के लिए। तो हम क्यों लैक कर रहे हैं इस चीज को। और इसमें मेरा साथ दिया मेरे कुछ म्यूजियम प्रोफेशनल्स ने, जो है एनजीएमए से
राष्ट्रपति भवन म्यूजियम से, रेल म्यूजियम से। सॉरी मैं इस वक्त थोड़ा सा नर्वस हूँ तो मुझे नाम नहीं याद आ रहे। शुभा बैनर्जी एंड Dipakshi Sharma, and first one was Shruti. I'm really forgetting her name. I'm sorry. तो इन लोगों ने मुझे पूरा पूरा मौका दिया कि म्यूजियम्स में आओ ममता और स्टोरी टेलिंग करो, और मैंने स्टोरी टेलिंग करी बिना किसी प्रिपरेशन के। मैं वहां जाती थी, जिस तरह के विजिटर मुझे दिखते थे, जिस एज ग्रुप के, मैं उनके हिसाब से स्टोरी कन्वर्ट करके उनको सुना देती थी। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट मैं आज आपको सुनाऊंगी, जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे और परेशान थे म्यूजियम के अंदर। मुझे कहा गया कि आप टैकल कीजिए इन स्टूडेंट्स को और प्लीज किसी तरह इन्हें आइए, आपका एक तरह से टेस्ट है। एंड दैट वाज द डे जिस दिन से फिर मेरी लाइफ एज अ स्टोरी टेलर बिल्कुल चेंज हो गई। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी कि कौन सा स्कल्पचर था जो मैंने उन बच्चों के, कहा मैं उन बच्चों को ले गई और कैसे मैंने स्टोरी बताई। लेट मी शेयर द स्क्रीन। या सो द स्कल्पचर ऑफ नटराजा। हम सब इस स्कल्पचर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसके बारे में हम म्यूजियम प्रोफेशनल्स तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब आप बाहर के लोगों से बात करते हैं, एक ऐसे विजिटर से बात करते हैं जो बिल्कुल दूसरे प्रोफेशन के हैं, जो आईटी प्रोफेशन से हैं या जो बिल्कुल एक डिफरेंट बैकग्राउंड से है, वो इस स्कल्पचर को ऐसे देखते हैं कि हाँ ये एक डेकोरेटिव पीस है, इसको हमको घर पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और ये हमारे भगवान शिव जी की एक प्रतिमा है तो इसको हमको वैल्यू करना चाहिए। लेकिन आप अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो मैंने बच्चों को इस मूर्ति के आगे बैठाया, सारे स्टूडेंट्स को इस मूर्ति के आगे बैठाया, और उसके बाद मैंने उनको बोला कि पहले आपको मैं मौका देती हूँ, ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ आपको इस स्कल्पचर में क्या क्या दिख रहा है। बच्चों के साथ बिल्कुल भी ना पढ़ाई वाला माहौल अगर आपने क्रिएट कर दिया तो वो बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए उनको बहुत उनके हिसाब से, उनके एज के हिसाब से आपको मेल्ट होना पड़ता है, उनके हिसाब से आपको ढलना पड़ता है, तब वो बच्चे आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पुट अप किया कि आप मुझे बताइए आपको इसमें क्या दिख रहा है, तो बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला मैम इसमें शिवजी ना डांस कर रहे हैं और बहुत अच्छा बैलेंस कर रहे हैं। राइटली सेड, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने देखा कि शिवजी बैलेंस कर रहे हैं। मैंने कहा और क्या दिख रहा है आपको? उन्होंने बोला मैम कुछ फायर सा दिख रहा है, जो उनको एक हल्का हल्का दिख रहा था वो उन्होंने देखा। अनफॉर्चुनेटली किसी भी बच्चे ने इस चीज में ध्यान नहीं दिया कि शिवजी के राइट लेग के नीचे एक दानव है, एक राक्षस है जो दबा हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता था, इसके बारे में किसी को नहीं पता था, और यही मुझे मौका मिल गया इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने का। फिर मैंने इन बच्चों को बोला कि ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझाऊंगी ये स्कल्पचर क्या है, और उनको मैंने शिव जी का बताया कि कोई शिवा बुलाते हैं, कोई शिव जी बुलाते हैं, कोई भोलेनाथ बुलाते हैं, हम शिवरात्रि की आपकी मम्मी घर में फास्ट करती है, ये वो भगवान है। और ये इकलौते वो भगवान है जो आपको बर्थ से लेके डेथ तक की लाइफ का एक पूरा चक्र दिखाते हैं, और वही ये मूर्ति आपको दिखा रही है। ये मूर्ति आपको दिखाती है कि किस तरीके से ये जो फायर सर्कल, कॉस्मिक सर्कल है आपकी लाइफ के चारों तरफ, मेरी लाइफ के चारों तरफ, आप बच्चों की लाइफ के चारों तरफ, ये फायर से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसके बाद भी हम किस तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं और बहुत हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। और जिस तरीके से शिव जी ने अपने राइट पांव से उस राक्षस को दबाया हुआ है, तो इसके पीछे भी एक बहुत प्यारी कहानी है। ये राक्षस हैं, और ये राक्षस का प्रॉब्लम ये था कि ये बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। इनको इतनी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गई थी कि इनको सारे पंडितों ने ये आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसको भी टच करोगे उसमें अपना अफेक्ट छोड़ दोगे। लेकिन इन्होंने अपने ज्ञान को, अपने एजुकेशन को नेगेटिव वे में यूज करना शुरू कर दिया, और एपिलेप्सी, जो मिर्गी का जो बीमारी होती है, जब भी किसी को भी टच करते थे उसको रोग हो जाता था, वो बीमार हो जाता था, और ये इस चीज को एंजॉय करने लगे। जब ये बहुत ज्यादा करने लगे तो सारे भगवानों ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज ऐसा मत करिए, रुक जाइए। वो नहीं माने, तो फाइनली उन्होंने शिव जी से रिक्वेस्ट किया
जब शिव जी और पार्वती इस राक्षस के पास आके उनसे प्यार से रिक्वेस्ट करने लगे तो भी ये राक्षस नहीं माना और इन्होंने मजे करने के लिए पार्वती को टच कर दिया। माँ पार्वती वही बेहोश होकर गिर गई और फिर आप समझ सकते हैं कि माँ पार्वती को कोई कष्ट हो तो शिव जी का क्या रिएक्शन रहेगा। ये वो स्टेज है जब शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने उस राक्षस का अंत करा। और ये हमें ये कहानी सुनाता है कि कभी भी अगर अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज को आप नेगेटिव वे में ले जाएंगे, उसका गलत उपयोग करेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो आपके इस घमंड को, आपके इस गलत व्यवहार को खत्म करेगा। तो इस तरह से ये स्टोरी थी। इसके अलावा ये स्टोरी आपको लाइफ को बैलेंस करना सिखाती है। आप देखिए तो नटराज का जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की तरफ गया हुआ है, जो कि मोक्ष, जिंदगी में किस तरह से आप अच्छे काम करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं वो दिखाता है। लेफ्ट हैंड, हम जानते हैं, हम एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं इसमें अपने जो अर्धनारीश्वर का, आप देखेंगे कि पार्वती उनके लेफ्ट में खड़ी, तो ये प्रेम का प्रतीक है ये हाथ। तो ये प्रेम का प्रतीक जो है, अगर आप प्रेम को अपने दुनिया में अपने साथ लेके चलते हैं तो किस तरीके से आप दुनिया को जीत सकते हैं, आप कठोर से कठोर व्यक्ति को जीत सकते हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और इसी में हमारा भारत आगे है, क्योंकि हम बहुत टॉलरेंस हैं, हम बहुत प्रेमी स्वभाव के लोग हैं और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने पे बिलीव करते हैं। शिव जी के एक हाथ में डमरू है जो हमें लाइफ के बारे में बताता है, शिव जी के एक हाथ में अग्नि है जो हमें डेथ के बारे में बताता है, और बीच का जो भी आप देख रहे हैं, जैसे उनके बाल देख रहे हैं, तो वो गंगा माँ है। तो गंगा माँ भी प्रेडिक्ट करती है कि अगर आपने मेरे साथ मजाक किया तो मैं रौद्र रूप धारण कर लूंगी। और इसका लाइव एग्जाम्पल केदारनाथ आप देख चुके हैं, केदारनाथ के समय में कैसा हुआ था, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग ने उनके साथ गलत करने की कोशिश की, उनको फॉर ग्रांटेड लिया। और लेकिन अगर आप उनको प्रेम से रखते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, नेचर को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाकर चलते हैं, तो यही गंगा माँ आपको पवित्र करती है। आप इनमें स्नान करते हैं और आप इनके साथ एक आध्यात्मिक वे में जुड़ जाते हैं। तो वो है ये स्कल्पचर। और इस तरह से जब मैंने उन बच्चों को मैंने देखा कि मैं तो कहानी फ्लो में जैसे अभी सुना रही हूँ, उस वक्त भी सुनाने लगी और सारे बच्चे बिल्कुल साइलेंट हो गए। और वहां मुझे पता चल गया कि हाँ, बच्चे सुन रहे हैं। एंड में बच्चों से मैंने क्वेश्चंस पूछे, बच्चों से मैंने पूछा बताओ तुम्हें क्या समझ आया, तुम्हें क्या समझ आया। बच्चों ने इतने अच्छे और पॉजिटिव आंसर्स दिए और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि मैम हम ये कहानी जाकर अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे। तो मेरा स्टोरी टेलिंग की जर्नी इस तरीके से सक्सेसफुल होती चली गई और अपने हर एक्सपीरियंस को मैंने एक सीढ़ी ऊपर करके लेना शुरू किया। बच्चों के साथ मुझे कैसे डील करना है, बड़ों के साथ मुझे कैसे डील करना है। कई बारी विदेशी विजिटर्स आते हैं, वो आप हैरान हो जाएंगे कि वो लैंग्वेज बैरियर को भी मायने नहीं रखते। वो सिर्फ सुनना चाहते हैं हमारे इंडियन माइथोलॉजी को, हमारे स्कल्पचर्स को समझना चाहते हैं, हमारी हिस्ट्री को। सो इन अ वे आई एम वेरी हैप्पी। एंड अवंतिका मैम, आई प्रॉमिस यू व्हेन एवर यू नीड मी, मुझ आपको मेरी जरूरत होगी। अवंतिका, आप लोगों को मेरी जरूरत होगी एज अ स्टोरी टेलर। मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बताइएगा कि ममता तुमको यहाँ पे ऐसे वॉलेंटियर करना है या यहाँ पे इस तरीके से म्यूजियम के लिए ये योगदान देना है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो थैंक यू सो मच। Hi, everyone. Good morning, everyone. My name is Shruti Gautam, and wishing everyone a very happy International Museum Day. And good morning, Ambika ma'am, Mamta ma'am, and Abantika ma'am. And thanks for giving me the opportunity to share my perspectives on storytelling so far. And Mamta ma'am, it was a very mesmerizing storytelling session. So thank you for sharing your journey as a storyteller with us. And थैंक यू सो मच श्रुति, थैंक यू।
You're welcome, ma'am. And